الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم نے جو سب سے پہلی آیت شروع کیا نازل کیا اپنے حبیب پر تو اس میں پڑھنے کا درس دیا گیا کہ پڑھ اور یہی نہیں کہ اپنے پیغمبر کے نام سے پڑھ اللہ کے نام سے پڑھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو پڑھنے کا جو کہا گیا تو اس امت کو بھی چاہیے کہ وہ تعلیم حاصل کرے علم دین حاصل کرے اور علم کو سیکھے جو علم اللہ رب العزت نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ چاہیے کہ مسلمان مرد اور عورتوں کو علم دین حاصل کرے وہاں تک جہاں تک کہ حرام و حلال کی تمیز ہو جائے. لیکن آج کل ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بات عائد ہے کہ مدرسے کے اندر مکاتب کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب جو ہوتے ہیں اس مکتب کے اندر بچے کو اس وقت تک دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ 6-7 سال کے ہوتے ہیں 8 سال کے ہوتے ہیں. میرے محترم مسلمانوں اور دوستوں میں نے یہی بات رات بھی کہی کہ جب بچے نہ سمجھی میں قرآن کریم کو لے کر مدارس میں جاتے ہیں مکتب میں جاتے ہیں وہ معصوم بچہ ہوتا ہے قرآن کریم صرف پڑھ دیتا ہے وہ عربی لفظوں کو نہیں جانتا عربی بھاشوں کو نہیں جانتا وہ قرآن کریم اپنے مدارس میں جا کر اپنے استاد محترم سے دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. یہی معاملہ سماج کا. لیکن جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں جب وہ بچے 12 سال کے ہوتے ہیں تو مدارس اور مکاتب سے نکال کر اسے اسکول اور کالج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جس علم دین کو فرض قرار دیا گیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اے محمد پڑھ جو نبی کو پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا اسی کی آج امت جب معصوم ہوتا ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو نہ پیشاب کا طریقہ ہے نہ ان کو پڑھانے کا طریقہ ہے نہ ان کو استاد کا ادب و احترام کا طریقہ ہے وہ بچے مدارس میں آتے ہیں. جب بچے ہوشیار ہو جاتے ہیں جب 10-12 سال کے ہوتے ہیں تو اس بچے کو اسکول کے لیے بھیج دیا.
कि ये मासूम बच्चे जब स्कूल में मदरसा में आए थे तो 7 साल के थे, माँ के गोद में खेलने वाले थे, बाप के गोद में रहकर खेलने वाले थे, उनको माँ और बाप की मोहब्बत मिलनी चाहिए। तो वो बच्चा आकर सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। लेकिन जब बच्चे होशियार हुए, स्कूल के लिए रवाना हुए, स्कूल के लिए चले, तो वो एक बैग को उठाया, सबसे पहले अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर गए तो देखा कि उस्ताद साहब जिनके अंदर न कोई तहसीब है, न तमद्दुन है, न उनके चेहरे पर सुन्नत है, न उनको शरीयत का कोई तरीका है, आया और बोर्ड पर खड़े होकर अपने बच्चे को पढ़ाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम इंग्लिश का इनकार नहीं है। कुछ दिन पहले भी हम लोग दरभंगा में थे, तो शायर साहब ने कहा कलम पढ़ा, करीम साहब भी मौजूद थे कि ना डीएम बनेगा, ना तू कप्तान बनेगा, बच्चा है मेरा, तू हाफिज कुरान बनेगा। मैंने कहा अशफाक साहब भी थे कि ऐसे पढ़िए कि डीएम भी बनेगा, कप्तान भी बनेगा, बच्चा है मेरा, पहले तू हाफिज कुरान बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे को कॉलेज भेजिए, स्कूल भेजिए, बच्चे को भी भेजिए, लेकिन जब वो स्कूल के लिए जाए तो उनको पहले सबसे पहले दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए। उसके बाद बच्चे को क्रिकेट के मैदान में भेजकर उसको कप्तानी कराइए और दुनियावी एतबार से उसको डीएम और डॉक्टर और सीएम भी बनाइए। उससे कहीं कोई एतबार दीनी तालीम में नहीं किया है। लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर बच्चियों को जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज के अंदर भेजा जाता है, हमारे पर्दा का ख्याल नहीं रहता। उससे यह होता है कि हमारे बच्चे दीनी तहसील को भूल जाती है, अपने आबा और अजदाद की दलीलों को छोड़ देती है। और असल बात यह है कि बच्चे ये समझती है कि ईमान मेरे लिए अब इस्लाम नहीं। ये जो मौलाना कुर्ता पायजामा पहनकर मिंबरों पर रहकर बड़ी कोशिश के साथ आपको ये बता देते हैं कि इल्म हासिल करना फर्ज है, तो आज मासूम नौजवानों को, गार्जियनों को पता चलता है कि अगर जो बच्चा दीनी तालीम हासिल कर लिया तो वो गरीब बन जाएगा, वो अमीर नहीं होगा, वो गुर्बत की जिंदगी गुजारेगा। मैं मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस में है और उलमा वरसतुल अंबिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उलमा को अंबिया का वारिस बनाया है। लेकिन दुनिया के लोगों को लेकर आज उम्मत के लोग मदारिस हमारा ये कहना है कि बच्चे जब दीनी तालीम हासिल कर लेंगे, आप मदरसे में पढ़ेंगे, वो सिर्फ टाइम दे। और मैं ये कहता हूँ अपने शहर में कि मत कर तकदीर का शिकवा, मत कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आसमां का जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मैं मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके सामने है मौलाना आलमगीर साहब तशरीफ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जो इज्जत दी है वो सिर्फ कुरान और हदीस के बदले में, और अल्लाह ने जो इल्म हासिल करने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इल्म हासिल करना फर्ज है, उसी इल्म के बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इज्जत दी। आज से 5-6 महीना पहले मुझे इस मदरसा में, इस मकतब में मुंतहिन बनकर आना पड़ा। जब हम एग्जाम देने के लिए बच्चे के आए तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे जिनको नाक साफ करने का तरीका नहीं था, लेकिन जब हम उनके नूरानी का सुनना शुरू किए, जब उनके तख्ती नंबर को देखे तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई कि छोटे-छोटे बच्चे को जिन्हें नाक साफ करने का तरीका मालूम नहीं है, मालूम तो है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि नाक के अंदर गंदगी है, मालूम बता रहे थे। लेकिन आपको इस उम्मत के लोगों को चाहिए कि जिस गांव में मकतब हो, जिस गांव में मदरसा हो, आपका मन चाहे या ना चाहे, लेकिन मदरसा और मकतब की ताउन करनी चाहिए, दिलो जान से ताउन करनी चाहिए। आपके पास माल नहीं है, मदरसे को माल की जरूरत है, लेकिन माल नहीं है तो आप अपने बच्चे को मदरसा के अंदर भेज दीजिए। मौलाना यहाँ से आपके बच्चे को तालीम देकर वापस भेजेगा। अगर आप हम जरा ये देखने को आता है कि मदारिस और मकातिब चल रहे हैं, हमारे साथ भी मामला होता है कि गाँव भर में मदारिस को चलाना, मकातिब को चलाना बड़ा बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग कर जाते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया बना लेते हैं कि मदारिस के अंदर पढ़ाई नहीं होती है। आप लोग उलमाए किराम तो सारी बात को जानते हैं, गार्जियन हालात बता दीजिए कि जो बच्चे स्कूल में 8 घंटे लगाते हैं, जो बच्चे कहीं ट्यूशन करते हैं, वो बच्चा सिर्फ मकतब में आकर 1 घंटा
50 से 60 बच्चा किस तरीके से वो कुरान करीम पढ़ेगा, किस तरीके से वो दुनिया पढ़ेगा, किस तरीके से वो इस्लामी तालीम की किताब पढ़ेगा, किस तरीके से वो बुनियादी कायदे का मुश्किल आएगा। और उसके बाद एक साल के बाद ये कह दिया जाता है कि मतलब के अंदर पढ़ाई नहीं। सबसे अफसोस की बात है कि आप अपने बच्चे को मतलब के अंदर टाइम बनाइए, वक्त दीजिए। अब आपके अंदर ये भी लाजिम होता है कि जो मदारिस में मौलाना पढ़ा रहे हैं उसके तनख्वाह पर वक्त, जब मजदूर के मजदूरी वक्त भी दिया करेगा वो बड़ी शौक से पढ़ाएगा। स्कूल के अंदर क्या है कि तनख्वाह वक्त पे दे दिया जाता है, पढ़ने वाले बच्चे आए और जो पढ़ना है वो पढ़ने चले, लेकिन उनके अंदर आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और सलीका नहीं है। दूसरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा कि लाइन पे बोलना ही है तो मैं बोल देता हूँ कि अपने बच्चों को सबसे पहले जब पढ़ने के लिए भेजिए तो जहाँ भेजना है भेजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अपने खानदान, रिश्तेदार, मोहल्ले, समाज दुनियावी तालीम के लिए जो बच्चे मौजूद हैं, जो मास्टर मौजूद है उसके पास भेजिए। जो बच्चे के लिए अल्लाह के हबीब ने पर्दे का हुक्म दिया वो बच्चियां जब कॉलेज और स्कूल में जाती है तो पर्दे को ताक पर रख देती है। आप अपने उस्ताद के सामने, अपने मास्टर के सामने ये पर्दा हो जाती है। हमारे यहाँ सर के बाद वो खोलना भी अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के सर के बाद को खोलने को हराम किया। तो आप जब आपको अपने मोहल्ले में मास्टर मौजूद हो और वो भी शरीय एतबार से ठीक हो तो बिना कराए आप उसके पास तालीम हासिल कीजिए। अगर मास्टर नहीं मौजूद है तो सबसे पहले अपने गांव में उसका इंतजाम किया जाए, बाहर से मास्टर और उसका इंतजाम करके वहाँ पे पढ़ाई और तालीम दी जाए। अगर इससे भी न हो सके तो जब बच्चे को भेजे तो आपका ये फर्ज बनता है कि बच्चे पर निगाह रखें, बच्चियों पर निगाह रखें कि बच्चे कहीं कोई अड्डे पर नहीं जा रहे हैं, बच्चे कहीं बेपर्दा तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो मैं अपने हबीब का तरीका उसे बताऊं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ये तासुरात में से है कि ये मदरसा रशीदिया बड़ी आन बान शान के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने वाले जो मुदर्रिस है मौलाना नसीर जमाली साहब जो शायर इस्लाम है, बड़े बेहतरीन मुअल्लिम मिले हैं, आप उसका ताउन कीजिए माली एतबार से भी और बच्चे के एतबार से भी। आप बच्चे को भेजिए, आप जिस तरीके से स्कूल के लिए भेजते हैं उस तरीके से मदरसा में भेजिए। अगर नासिर इस मदरसा को चला रहे हैं उसको उसके साथ दीनी मोहब्बत है। अगर आप मोहब्बत रखिएगा तो यकीनन आपके बच्चे के दिलों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होगी। जो नबी ने औरतों को इज्जत और मकाम दिया उससे पहले कोई मकाम और मर्तबा औरतों को नहीं था। मैं इन्हीं चंद बातों पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। दुआ करें इस मदरसे को सुनने और आपको चढ़नी अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, ये थे जनाब है मौलाना अब्दुल सलाम साहब इमाम खतीब